চেষ্টা করছি। এটা কি দেখা যাচ্ছে? একটু আনমিউট করে বল স্ক্রিনটা। যাচ্ছে স্যার, অল্প অল্প Yes, যাচ্ছে। sir. ক্লিয়ার অর নট? ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার। Yes, sir. ওকে ওকে। তো আমি যে কোশ্চেনটা যেটা পাঠিয়েছিলাম, আগেই পাঠিয়েছিলাম, আজকে আবার নতুন করে কোশ্চেনটাকে পাঠালাম। তো ওটাই আমাদের যে ফাইনাল অ্যাকাউন্টটা তৈরি করতে হবে, সেই ফাইনাল অ্যাকাউন্টটার ফার্স্ট পার্টে অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স শিট আছে, কিন্তু ব্যালেন্স শিট তো আগে আমরা তৈরি করতে পারবো না যদি প্রফিট না জানতে পারি। তো সেই জন্য আমাদের আগে প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্টটা আমাদের আগে বানাতে হচ্ছে। একদম ওপরে হেডিং এ লিখে দিবি নেম অফ দ্য কোম্পানি, কোম্পানির নাম। আমি কোশ্চেনে দিয়েছিলাম মনে হয় বিডি লিমিটেড। তো নেম অফ দ্য কোম্পানি বলে ওপরে যাবে বিডি লিমিটেড, তার নিচ দিয়ে লিখবো স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাজ অ্যাট, দিয়ে তোদের যে ডেটটা ওখানে মনে হয় 31/3/2019 ছিল, বা যেটা ছিল সেটা তোরা ওখানে পুট করে দিবি। ফার্স্টে যেটা তোদের করতে হবে, আগে এই টেবিলটাকে আগে লিখে নিবি। এই যে মানে আই এর মতন 1 দিয়ে রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন, 2 দিয়ে আদার ইনকাম, নাম্বার 3 দিয়ে টোটাল রেভিনিউ 1+2, দ্যাট ইজ এই 3টা বেরোচ্ছে। তারপরে 4 দিয়ে এক্সপেন্সেস, এই যে পি সি কো ই এফ দো, এই যে রুলসটা তোদের শিখিয়েছি এটা পরপর যাবে। পি ফর হচ্ছে পারচেজ অফ স্টক ইন ট্রেড, তারপরে চেঞ্জেস ইন ইনভেন্টারিজ, তারপরে এমপ্লয়িজ বেনিফিট এক্সপেন্সেস, ফাইন্যান্স কস্ট, ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড অ্যামোর্টাইজেশন এক্সপেন্সেস, তারপর হচ্ছে আদার এক্সপেন্সেস। এটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামোর্টাইজেশন এক্সপেন্সেস, তারপরে আদার এক্সপেন্সেস হয়ে গেল। তারপরে আমরা কি করব, নাম্বার 5 প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, দ্যাট ইজ 3 - 4। এই 3 এর একটা টোটাল হয়েছে আর 4 এর একটা টোটাল হয়েছে, এই 3 - 4 করলে এটা পাবো। তারপর নাম্বার 6 হচ্ছে ট্যাক্স এক্সপেন্সেস। এই ট্যাক্সটা তোকে অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা থাকবে যে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন কত পার্সেন্ট, সেই ট্যাক্সটা এখানে বসবে, ট্যাক্সের রেটটা। এবং এটা ক্যালকুলেট হবে হচ্ছে এইখানে যে ফিগারটা বেরোবে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, তার উপরে এই পার্সেন্টেজটা ক্যালকুলেশন করব, মানে এখানে যেটা ছিল তার উপরে। আর তারপরে প্রফিট আফটার ট্যাক্স, মানে এটা প্রফিট বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্স এক্সপেন্সেস মাইনাস করেছি, মানে 5 - 6 করলে আমাকে বেরিয়ে যাবে 7। এইটুকুনি আমাকে বার করতে হবে। ভেরি সিম্পল, তোরা নিজেই দেখেছিস আমি অনেক ইজি ভাবে তোদেরকে করানোর চেষ্টা করেছি। তাহলে প্রথমে তোদের এই ফরম্যাটটা আশা করি লেখা হয়ে গেছে। আহ, Sir, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, লিখে নে লিখে নে, আমি ওয়েট করছি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক, আগে ফরম্যাটটাকে আগে লিখবি সব সময়। খাতা খুলে আগে ফরম্যাটটাকে লিখে নাও, এই পুরো ফরম্যাটটা। অ্যামাউন্ট তো বসাবো, কাজ শেষ হবে যোগ বিয়োগ করবো, এটা তো পরে বসবে। তোরা আগে যেটা করার দরকার সেটা হচ্ছে তোরা ফরম্যাটটাকে আগে ফার্স্টে কমপ্লিট কর, এবং তোরা পাশে একটু কোশ্চেনটাকে খোলা রাখবি অবশ্যই। তাহলে তোদের দেখতে সুবিধা হবে, আমি বললে পরপর কোথায় কোনটা দেখবি আমি ঠিক তোদের আইডেন্টিফাই করিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। সবার লেখা হয়ে গেলে জানা, আমি তারপরে স্টার্ট করব। তোদের স্যার যেখানে শুধু এই, সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছেন ওই নাম্বারের হ্যাঁ, উপরে, স্যার যেখানে সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছেন 1 2 3 4 5 করে, ওটার উপরে হুম, যেটা লিখেছেন ওটা কি লেখা আছে একটু বলবেন স্যার? এইটা এইটা না স্যার, এইটা পার্টিকুলার স্যার, পাশেরটা পাশেরটা স্যার। পার্টিকুলার এই লেফট সাইডে এটা? না স্যার, রাইট সাইডের 1 2 3 4 5 যেটা আছে। ও হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ, এটা 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 এটা, হ্যাঁ। এইটা নোট নাম্বার, ও নোট আচ্ছা, নাম্বার। ঠিক আছে, হ্যাঁ। হুম। দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ স্যার, দেখা গেছে, লিখেছি। জুম করে দিলাম একটু। হুম হুম ওটা নোট নাম্বার আছে, নোট নাম্বার, তারপর একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট রুপিস। আর হুম স্যার। ডান দিকে এটা করবি না, তোদেরকে যেটা বলে দিচ্ছি শোন।
এই নোটস টু অ্যাকাউন্টসটা কিন্তু এই যে অঙ্কটা যেখানে আমরা কোশ্চেনটা করছি প্রফিট অ্যান্ড লস, এর নিচে ব্যালেন্স শিট করার জন্য একটা পেজ ছাড়বি, তারপরে এই নোটস টু অ্যাকাউন্টস এর জন্য জায়গাটা রাখবি। এই নোটস টু অ্যাকাউন্টসটা কিন্তু সবার লাস্টে যাবে। ঠিক আছে স্যার। প্রথমে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, এটা যেমন একটা ছকের মধ্যে হয়েছে, এটা ছোট জায়গাতে হয়ে যায়। ব্যালেন্স শিটটা এর থেকে একটু বড় জায়গা লাগবে। মানে যদি ধর একটা পেজের 40% জায়গা যদি ও নেয়, তাহলে 60% জায়গা ব্যালেন্স শিট নেয়, মোটামুটি অন অ্যান অ্যাভারেজ। তাই বলছে, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে তোরা এটার পরে তোদের হ্যাঁ স্যার। 60% একটা জায়গা ছাড়বি, যদি এটাকে 40% কাউন্টিং করিস। তাহলে 60% একটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তারপরে লিখবি, একটা হেডিং করবি নোটস টু অ্যাকাউন্টস, আর ডান দিকে দুটো কলাম বানাবি, এরকম দুটো কলাম একদম রাইট সাইডে, দুটো কলাম ডান দিকে একদম রাইট সাইডে এরকম দুটো কলাম আমরা বানিয়ে নেবো। ওকে, এই দুটো কলাম। আমি কলামটা ওখানে দেখাতে পারিনি, জায়গা যেহেতু আমার কম ছিল বোর্ডের মধ্যে, তো এই জায়গাটা আমার বেশি ইউজ হয়ে গেছিল, সেই জন্য। তোরা তাহলে এটা করে নে, এই ছকটা পুরোটা লিখে ফেল। আর তারপরে ব্যালেন্স শিটের জন্য জায়গা ছেড়ে তারপরে তোরা লিখবি নোটস টু অ্যাকাউন্টস। নোটস টু অ্যাকাউন্টসটা লিখবি, লিখে ডান দিকে দুটো অ্যামাউন্টের কলাম দিবি। আর কিচ্ছু লিখবি না, শুধু এই কলামগুলোর ওপরে, এই যে কলামগুলো যেটা আছে তার উপরে শুধু রুপিজের সিম্বলটা দিয়ে দিবি। এই একটা কলাম, এই একটা কলাম, জাস্ট রুপিজের সিম্বল, আর কিচ্ছু দিতে হবে না। মানে এই যে লাইনটা সেটা এইটার সাথে জুড়ে দিলে যেরকম দাঁড়াবে সেরকম। মানে উপরে একটা সিঙ্গেল লাইন হবে, ডাবল লাইন দিলে আবার তোকে পার্টিকুলার্স লিখতে হবে, সো দরকার নেই কোনো ওখানে ডাবল লাইন দেওয়ার। আর এটা একটু বড় করে দিচ্ছি যাতে তোদের দেখতে সুবিধা হয়, ওই জন্য। যদি কোনো জায়গা দেখতে বা বুঝতে অসুবিধা হয়, আমি ক্লিয়ার করে দেবো, অসুবিধা নেই। সবার এটা লেখা হয়ে গেলে আমাকে একটু কাইন্ডলি জানা, আমি তারপরে। সবার হয়ে গেলে একটু আনমিউট করে বল, আমি তাহলে। ঠিক আছে স্যার আহ আমাদের। হয়ে গেছে সবার? আচ্ছা, তাহলে ঠিক नो আছে, তাহলে सर। আমরা। নো স্যার না ইয়েস স্যার, কি বলছিস ভালো করে বল। नो सर। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, लंच टाइम हो गया ना, लंच करना है इसके बाद। हो गया। सुबह। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो তোদের এই फॉर्मेटটা যেহেতু কমপ্লিট হয়ে গেছে, आप लोगों का ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। तो फास्ट में ये देखो क्या है, नंबर 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो এবার তোরা কি করবি, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स कितना है। क्वेश्चन में देखो सेल्स कितना है। क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस में देखो परचेस एंड सेल्स दिया हुआ है एक साथ। डेबिट में है परचेस 2,40,000 और क्रेडिट में है सेल्स 3,60,000, है ना। ट्रायल बैलेंस में देखो, तुम्हारा जो ट्रायल बैलेंस है उधर देखो 3,60,000 का सेल्स दिया हुआ है। ये सेल्स আছে তো, ট্রায়াল यस ব্যালেন্সটা सर। পাস। হ্যাঁ, তাহলে সেলস আছে। এবার তোকে দেখ রিটার্ন, দেখ ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে কত দিয়েছে। ট্রায়াল ব্যালেন্সে রিটার্ন সেলস এর কোন দিকে থাকবে, সেলস যদি ক্রেডিট সাইডে থাকে ট্রায়াল ব্যালেন্সে, তাহলে ডেবিট সাইডে রিটার্ন থাকবে, মানে রিটার্ন ইনওয়ার্ড অর সেলস রিটার্ন। দেখ ট্রায়াল ব্যালেন্সে কত দেওয়া আছে। ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট সাইডটা একটু চেক করে দেখে নে, রিটার্ন কিছু আছে নাকি। রিটার্ন আউটওয়ার্ড আছে, রিটার্ন ইনওয়ার্ড নেই, তাই না। নেই স্যার, এটা নিন ওয়ার্ড ডেবিটে। তাহলে কোনো চাপ নেই। তাহলে রেভিনিউ नो। ফ্রম অপারেশন মানে ডিরেক্টলি
তোরা সেলসটা ওইখানে 3,60,000 ডিরেক্টলি বসিয়ে দে, এটার জন্য কোনো নোটস টু অ্যাকাউন্টস করতে হবে না। ওকে, রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন লেখা আছে, জাস্ট অ্যামাউন্টের জায়গায় 3,60,000 এটাকে পুট করে দে, 3,60,000। ওকে, হয়ে গেল। তাহলে আর কোনো চাপ নেই, তাহলে আমার নাম্বার ওয়ান কমপ্লিট। এবার নাম্বার টু হচ্ছে আমার আদার ইনকাম। এই আদার ইনকামের মধ্যে আমাকে কি কি দেখতে হবে? তোরা আবার ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে যা, আদার ইনকামের মধ্যে কাকে কাকে খুঁজবি, যে ডিসকাউন্ট রিসিভড, কমিশন রিসিভড, ইন্টারেস্ট রিসিভড, ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট রিসিভড, ক্রেডিট সাইড, ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট সাইডে এরকম কোনো আইটেম আছে নাকি, বা ট্রান্সফার ফিজ। দেখ, ক্রেডিট সাইডে এরকম যদি কোনো আইটেম থাকে তাহলে সেগুলো আমাকে আদার ইনকামে নিতে হয়। তো ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিট সাইডে যেসব আইটেম গুলো আছে, ক্রেডিটের যে ব্যালেন্স গুলো দেখ সুন্দর করে দেওয়া আছে, তার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে না আছে কোনো কিছু। তোরা একবার নিজেরা চেক করে দেখে নে। ট্রায়াল ব্যালেন্সে শুধু ক্রেডিটের আইটেম দেখবি, এখানে ডেবিটের আইটেম দেখে লাভ নেই। ইনকাম হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিটে থাকে, ডেবিটের কোনো আইটেম চেক করার দরকার নেই। सिस्टमটাকে फॉलो করলেই হবে, सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जाओ, देखो कोई इंटरेस्ट इनकम कुछ है कि नहीं, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड या ट्रांसफर नहीं है फीस नहीं है। तो इधर क्या कर दिया हमने, तो डैश दे दिया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, अदर इनकम का पार्ट में कुछ भी नहीं है हमारे प्रॉब्लम में। तो इधर एक डैश दे दो, ऐसे डैश दे दो, ठीक है, डैश दे दिया। ओके, और इसके बाद हम नंबर थ्री में आएंगे। क्या है थ्री में? थ्री में है टोटल रेवेन्यू, ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1+2। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1+2, और 1 में तो 3,60,000 है, और 2 में तो कुछ भी नहीं है, तो 1+2 ऐड करके हम कितना पाएंगे, तो 3,60,000 ही आएगा। तो ये 3,60,000 हमारा जो आया है, इसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू मतलब हमारा नंबर थ्री बन गया है अभी तक। इसको हम क्लोज कर देंगे, ऊपर में एक लाइन दे देंगे और नीचे भी एक लाइन दे देंगे, ऐसे हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके ओके, और इसको क्लोज ओके करने के, सर। ओके वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, और इसके बाद आएंगे हम नंबर फोर में। तो नंबर फोर का जो दिया हुआ है, एक एक्सपेंसेस लिखना है, और थोड़ा सा जगह छोड़ के हम ऐसे PCEFTO, तो मतलब हमने क्या कोड किया है, पीसी को EF दो, तो ऐसे सीरियली आप लोगों को लिखना है। तो P मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C फॉर चेंजेस इन इन्वेंटरीज, E फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, F फॉर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंस, एंड O फॉर अदर एक्सपेंसेस। सो तो फास्ट में क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस पे देखना है डेबिट साइड में परचेज कितना है, और रिटर्न कुछ है कि नहीं। अगर रिटर्न रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो इधर इधर देख लो, ये आपका ट्रायल बैलेंस में परचेज कितना है, पहले ये देख लो, और रिटर्न कुछ है कि नहीं। ओके, पहले देख लो परचेज कितना है। एनीवन कैन अनम्यूट एंड से। 2,40,000। और रिटर्न कितना है, रिटर्न 10,000। तो क्या करेंगे हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स में, ये देखो हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में मतलब वो जो बैलेंस शीट को जगह छोड़ के जो आपने नोट्स टू अकाउंट्स को जगह बनाया है ना, उधर, और इधर एक नंबर वन दे दो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसका नोट नंबर में 1 लिखो, और इधर आ जाओ नंबर 1 लिखो नोट्स टू अकाउंट्स में, ऐसे नंबर 1, मतलब ये 1 का डिटेल इधर बन रहा है, ठीक है ना। तो कैसे हम बनाएंगे, तो इधर फिर से हमको लिखना पड़ेगा क्या, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको हमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और उसके नीचे लिख दिया परचेस 2,40,000 लेस रिटर्न 10,000, और आउटर कलम में हमने दिखाया 2,30,000। ऐसे ही आप बना लो। ये किधर बनाओगे तुम, नोट्स टू अकाउंट्स में। पहले लिखोगे नंबर 1 परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके नीचे से लिखना है परचेस 2,40,000, और उसका नीचे में लेस रिटर्न 10,000। तो 2,40,000 से 10,000 लेस करके ये जो है अमाउंट आया है, वो आउटर में ऐसे डबल लाइन देके हमको एक ऊपर में और एक नीचे में भी लाइन देना है। ऐसे तुम लाइन टर्न के इसको क्लोज कर दो, मतलब ये जो क्लोज कर दिया, ये अमाउंट हमको
उधर से लेकर इधर दे देना है। किधर देना है? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। देखो हमने दे दिया परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नंबर 1, और ये अमाउंट आ गया किधर से? नंबर 1 का नोट्स टू अकाउंट्स में है ये 2,30,000 हमने इधर दे दिया। तुम भी ऐसे दे दो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो अनम्यूट करो और बोलो हमको, हम फिर से बोलेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो भी बताना, और इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम में आएंगे। हो गया सर। वेरी गुड। और इसके बाद क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद क्या है? ये क्या लिखा है? चेंज क्या इन है? इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, है ना। इसका चेंज कैसे हम देखेंगे? तो हमको ओपनिंग स्टॉक देखना है। ओपनिंग स्टॉक किधर रहेगा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक किधर रहेगा? एडजस्टमेंट में। तो ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। तो इसको आपको नोट में ही दिखाना है। इसीलिए हम इधर दिखा दिया कि नोट नंबर 2, और इधर हम आ गए नोट नंबर 2 में। देखो ये क्लियरली दिखा रहा है, हम ये नंबर 2 दे दिया नोट्स टू अकाउंट्स में। ये आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो चेंजेस इन इन्वेंटरीज, फिर से लिखना है उसको नंबर 2 देके चेंजेस इन इन्वेंटरीज। और आपको पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ये ट्रायल बैलेंस में देखो 60,000 आपका अमाउंट है। और क्लोजिंग स्टॉक देखो एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, हम पढ़ के बता रहा है। Stock on 31st March 2009 was valued at 90,000, but market value is 95,000। तो इधर दो वैल्यू दिया है, एक 90,000 और 95,000। लेकिन हम कौन सा अमाउंट लेंगे और क्यों लेंगे? एनीवन कैन अनम्यूट एंड से। कोई भी हमको बताए कि हम कौन सा अमाउंट लेंगे और क्यों लेंगे। इधर तो हमने दिखा दिया क्या 90,000 हमने ले लिया, लेकिन क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। मतलब आपको कम वैल्यू जो है उसको ही लेना है। तो 90,000 और 95,000 में जो कम वैल्यू है, मतलब ये है 90,000 आपका लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू हमने ले लिया। तो क्या लिखा? 60,000 से 90,000 लेस होगा तो क्या आएगा? आपको नेगेटिव फिगर में आ जाएगा ये आउटर में देखो हमने नेगेटिव में मतलब ब्रैकेट में दिखा दिया। 60,000 लेस ओपनिंग स्टॉक, 60,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 90,000, और हमने इधर क्या दिखाया? यह नेगेटिव 30,000, और हमने ये नेगेटिव 30,000 इधर चेंजेस इन इन्वेंटरीज में नोट नंबर 2 इधर इंडिकेट कर दिया और इधर लिख दिया नेगेटिव में, मतलब ये ब्रैकेट में आ गया। Always you should be maintain less closing stock from the opening stock। मतलब মানে তোদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং স্টক থেকে ক্লোজিং স্টককেই লেস করতে হবে। কখনো ক্লোজিং স্টক থেকে ওপেনিং স্টককে কিন্তু লেস করা যাবে না। ঠিক আছে, সবসময়ই আমাকে ওপেনিং স্টক থেকে ক্লোজিং স্টকটাকে লেস করতে হবে। অলওয়েজ রিমেম্বার দিস পয়েন্ট। যে বড় হোক যে ছোট হোক কোনো ব্যাপার না, বড় ছোটর ব্যাপার নেই। আগে যে আছে সে আগে बसবে, ओपनिंग আগেরটা বসবে, তারপর ক্লোজিং স্টক বসবে। तो ये हो गया शायद आपको कंप्लीट, और हो गया ना सबका? সবাই হয়েছে? सर। वेरी गुड। और इसके बाद हम आ रहे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है ये? तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब वो जो फर्म का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, वो फर्म एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। तो क्या देते हैं एम्प्लॉइज को? हम सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, और क्या देते हैं? बोनस देते हैं। ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो इसके अंडर में आएगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में पहले देखना है। ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब सैलरीज वेजेस कितना है, और अगर कोई एडजस्टमेंट में रहेगा तो एडजस्टमेंट में उसका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा या प्रीपेड रहेगा, उसको भी हमको एडजस्ट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं उसका ट्रायल बैलेंस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के लिए क्या है। तो इधर देखो ट्रायल बैलेंस में आप देख लो, ट्रायल बैलेंस पे आपको सैलरीज एंड वेजेस एक साथ दिया हुआ है ना। ये 40,000 का अमाउंट एक दिया है ट्रायल बैलेंस में,
और एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस वेर 1500। तो हम इसको क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक नोट बनाया है, नोट का नंबर है नंबर 3। और ये नोट नंबर 3 में क्या दिखा रहे हैं हम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये नोट नंबर में हमको दिखाना है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। हमने लिख लिया नंबर 3 एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और नीचे से क्या लिखा है, सैलरीज एंड वेजेस, जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है ये है 40,000। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है 40,000, हमने इधर लिख दिया इनर कॉलम में। और उसके साथ ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 1,500। तो इसको, इस दोनों को टोटल कर दिया, क्योंकि और कोई एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है और एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है। तो इस दोनों को ऐड करके हमको आ गया है 41,500, है ना। इधर टोटल टोटल आ गया 41,500। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का नोट नंबर 3 इधर दे दिया और इसका अमाउंट इधर दे दिया। तुम भी ऐसे पुट कर दो और इसको नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे दिखा दो। বানিয়ে নে সবাই, হয়ে গেলে বলবি। अगर हो जाए तो आप रेस्पॉन्स करना। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। किसी का कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ना सर। नो सर, नो सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वो इसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब कंपनी ने फाइनेंस किधर से करता है, तो डिबेंचर मार्केट में इशू करता है और बैंक से लोन भी ले सकता है। तो आपको पहले देखना है आपके पास जो ट्रायल बैलेंस है, इसके लिए आपको देखना है कि फाइनेंस कॉस्ट के लिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में डिबेंचर और बैंक लोन कुछ भी है कि नहीं, पहले आप चेक कर लो, देख लो। जो फाइनेंस कॉस्ट के लिए आपको क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है। और ट्रायल बैलेंस में जाके हमको क्या देखना है, कि हमको देखना है ये कि ट्रायल बैलेंस में डिबेंचर और बैंक लोन ऐसा कुछ भी है कि नहीं। तो आप पहले चेक कर लो और मुझको बताओ ये क्या है। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है, इधर डिबेंचर भी नहीं है और इधर बैंक लोन भी नहीं है। तो अगर डिवेंचर रहता तो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट आएगा तो उसको हम इधर फाइनेंस कॉस्ट में दिखा देते थे, और बैंक का इंटरेस्ट जितना है इसको बोलेंगे हम फाइनेंस कॉस्ट। इधर कुछ भी नहीं है इसलिए हम इधर क्या कर दिया, या डैश दे दिया, मतलब इधर कुछ भी नहीं है फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है। तो उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बनता है, जो फिक्स टेंजिबल एसेट होता है, फिक्स टेंजिबल एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर होते हैं, एमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, इसके ऊपर एमोर्टाइजेशन होते हैं। तो पहले आप देख लो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है। तो हम जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में, इधर देखो दिया हुआ है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% and furniture fixture at the rate of 15% and patent and trademarks at the rate of 5%। मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 15% और पेटेंट ट्रेडमार्क के ऊपर 5%। तो इसको हमको नोट बनाना है। तो हमने देखो इधर दे दिया कि नोट नंबर 4 हमने दिखा है, और हमको नोट नंबर 4 इधर बनाया है। क्या लिखा है नोट नंबर 4 में, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ऐसे तुम लोग भी लिख सकते हो। नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और उसके अंडर में लिखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 15%, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स एट द रेट ऑफ 5%। ऐसे पहले लिख दो, क्योंकि इधर only the amount of depreciation will come. Okay, no fixed asset will come here, only the amount of depreciation calculate and put here on depreciation and amortization expenses. Okay,
মানে শুধুমাত্র ডেপ্রিসিয়েশন আর অ্যামোর্টাইজেশন এক্সপেন্সেস যেটা আছে শুধুমাত্র ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্টটুকুনি এখানে আসবে। তাহলে প্রথমে দেখে নে, এবার ट्रायल बैलेंस से তোকে देखते হবে যে प्लांट एंड मशीनरी কত আছে। तो आपको पहले देखना है ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी कितना है, अमाउंट कितना है। कोई बताए, अनम्यूट करे और बोले हमको, हमको कोई तो बताए, रिस्पॉन्स करे। 50,000। वेरी गुड। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो हमने इधर 5,000 ले लिया। ओके, तुम भी ले लो। तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, 50,000 का 10% आया है 5,000। और इसके बाद है फर्नीचर फिटिंग्स, उसके ऊपर 15%। तो देख लो फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है, फर्नीचर फिटिंग्स है 11,000। तो 11,000 के ऊपर 15% आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है देख लो, 11,000 के ऊपर 15% कितना आ रहा है, 11,000 के ऊपर 15%। ओके, अरे क्यों बोल, सारा शब्द दे। 165। 1650। 50 স্যার। 1650, वेरी गुड, 1650। और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितना है देख लो, उसके ऊपर 5% कर दो। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क देखो नीचे है, थोड़ा छोड़ के, जिधर फर्नीचर फिटिंग्स था उसके भी नीचे है, दो चार आइटम छोड़ के देख लो। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है 5,000, है ना। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है 5,000। तो 5,000 के ऊपर हमने 5% ले लिया और इधर आ गया 250। 250। হ্যাঁ 250, ভেরি গুড। তাহলে এখানে এবার ওই 250 আর 1650 আর 5,000 के ऐड করে দিলাম আমরা। तो हमने ऐड करके कितना है 6,900। ये ऐड ठीक है कि ना, कि नहीं, एक बार चेक कर लो। 6,900 इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, यस सर ठीक है। वेरी गुड। तो इधर हम दे दिया, इधर देख लो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नोट नंबर 4, और इधर अमाउंट दे दिया हमने 6,900। तुम भी उधर लिख लो 6,900। वेरी गुड। और इसके बाद जो है हमारा लास्ट आइटम, लास्ट मतलब एक्सपेंसेस का लास्ट आइटम जो है, तो इस क्या बोल रहा है, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस के लिए किधर क्या क्या एक्सपेंसेस इधर आएगा, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऐसे ऐसे जो एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में रहता है वो तो आएगा ही। और उसके साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा रहेगा तो उसको भी एडजस्ट करना है। प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐसा जो भी है वो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, जो इधर नहीं आया है। जो एक्सपेंसेस इधर 5 आइटम में नहीं आया है वो लास्ट आइटम में अदर एक्सपेंस में हम दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं हम ट्रायल बैलेंस में जाकर हम देखते हैं जो अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। तो इसके लिए नोट जरूर बनाना है। इधर नोट नंबर 5 हमने दे दिया है। और ट्रायल बैलेंस में देख लो, पहले स्टॉक है और उसके बाद छोड़ के आओ तो आपको रेंट है, रेंट का एक अमाउंट दिया हुआ है, रेंट का अमाउंट है 4,200, ये आएगा। और सन्ड्री एक्सपेंसेस है 7,000, ये आएगा। और इधर जो कुछ भी है ये कोई कुछ भी नहीं आएगा इधर। एडजस्टमेंट में देख लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ नहीं आएगा। तो हमने इधर देखो, तो डेप्रिसिएशन के बाद हमने नंबर 5 क्या लिखा है, अदर एक्सपेंसेस। तो नोट्स टू अकाउंट्स में ये आप लिख लो नंबर 5 दे के, और इधर लिख दो अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस आप लिख दो रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। रेंट का अमाउंट है 4,200 एंड सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट है 7,200। दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा आपको 11,200। ये पहले लिख लो। नोट नंबर 5 अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस में क्या है, रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। रेंट का अमाउंट है कितना है 4,200 और सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट है 7,000। दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आ गया इधर आपको 11,200। ओके, तो 11,200 हमने ये अदर एक्सपेंस का हेड में इधर दे दिया। तुम लोग भी उधर से अमाउंट कैलकुलेट करके नोट नंबर 5 इधर मार्क कर दो और इधर लिख दो कि 11,200। तो आपका एक्सपेंस का जो है সবার হয়েছে, अदर एक्सपेंसेस कंप्लीट। হ্যাঁ স্যার।
সবার হয়েছে, ভেরি গুড ভেরি গুড। কারো যদি না হয়ে থাকে দেখে নে একবার। হয়েছে সবার, ভেরি গুড। তাহলে আমাদের এক্সপেন্সেস এর দেখ পার্টে যে ছটা ছিল, সেই ছটা পার্টে আমরা নিয়ে নিয়েছি। তাহলে এই ছটাকে এবার অ্যাড করতে হবে, কিন্তু কিন্তু এটা কেন বললাম, কারণ এখানে একটা নেগেটিভ ফিগার আছে। তাহলে কি হবে, বাকি যেগুলো পজিটিভ আছে সেগুলোকে অ্যাড করবি, ক্যালকুলেটরে ফেল, অ্যাড কর। মানে 2,30,000 প্লাস 41,500 प्लस 6,900 प्लस 11,200 माइनस 30,000। मतलब जो पॉजिटिव फिगर है वो उसको हम ऐड करेंगे और नेगेटिव फिगर को हम लेस कर देंगे। तो आपको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है आप देख लो। हमारा तो आया है 259,600। ये इसको आपको चेक करना है, ये क्या, ये 259,600 ये ठीक है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। पॉजिटिव पॉजिटिव जो फिगर्स है उसको ऐड कर दो, और निगेटिव जो 30,000 है चेंजेस इन इन्वेंटरीज का, उसको हम लेस कर देंगे। पहले पॉजिटिव को ऐड कर लो, उसमें से 30,000 लेस कर दो। तो सही है वैल्यू। सही है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आप लिख सकते हो 259,600, और इसको लिखने के बाद ही हम क्या करेंगे, ऊपर में एक लाइन दे देंगे और नीचे से भी एक लाइन टान देंगे। जैसे हमने टोटल रेवेन्यू के लिए एक ब्लॉक कर दिया, इधर देखो, ऊपर में एक लाइन और नीचे भी एक लाइन। अब क्या करना है, ये ऊपर ये जो नंबर 3 है, इस 3 में से इस 4 को लेस करना है। मतलब ये जो अमाउंट है फर्स्ट ब्लॉक, उसको उसमें से आपको 259,600 लेस करना है। लेस करके जो आएगा फिगर, इसको हम बोलेंगे नंबर 5 में जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने ब्रैकेट में भी लिख दिया 3 - 4। तो 3 - 4 इसको लेस करके देखो ये अमाउंट भी सही है कि नहीं, इसको आपको चेक करना है। 3,60,000 माइनस 259,600। ঠিক আছে, এটা সব ক্যালকুলেটর কোথায় রেখেছিস সব, না মোবাইলে ক্যালকুলেট করছিস? স্যার আরেকবার বলুন, কি বললেন? এই যে 3,60,000টা উপরে আছে না নাম্বার 3-তে, হ্যাঁ यस এইটা सर ठीक এটা है। এটা থেকে এই যে নিচে যেটা বার করেছি এটাকে মাইনাস করে দে। 3,60,000 থেকে এটাকে মাইনাস করলে যেটা বেরোবে সেটাকে বলছি প্রফিট বিফোর ট্যাক্স। দেখ লিখে দিয়েছি 3 - 4। 3 এখানে তোর নাম্বার দেওয়া আছে, 4 এখানে তোর নাম্বার দেওয়া আছে। তাহলে এটা থেকে এটা মাইনাস মানে কি, হ্যাঁ এটা টোটাল বুঝেছি। থেকে এটা টোটালটা মাইনাস করলে যেটা বেরোচ্ছে ব্র্যাকেটে লিখবি 3 - 4। এটাকে লিখবো প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, আমাদের লেখাই আছে, জাস্ট ওটা সোজাসুজি একদম লিখবো, প্রফিট বিফোর ট্যাক্স ইজ 1,00,400। হয়েছে। তারপরে দেখ আমরা নাম্বার 6 দিয়ে লিখছি যে ট্যাক্স এক্সপেন্সেস। এই ট্যাক্সের পার্সেন্টেজটা আমি কোথায় পাবো, ওটা অ্যাডজাস্টমেন্টে বলবে ওরা, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন। ওখানে দেখে নে অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার কততে আছে, 6 না 4-এ? कौन सा एडजस्टमेंट में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? एडजस्टमेंट नंबर 4 या एडजस्टमेंट চার নাম্বার 6? 4 4, 4-এ আছে। কত পার্সেন্ট বলেছে ওখানে? 40। 40%। তাহলে আমি এখানে 40% লিখে দিয়েছি। তাহলে তোরাও লিখবি ট্যাক্স এক্সপেন্সেস @40%। কার ওপর 40% করবি, এই যে 1,00,400 যেটা এসছে এর উপরে 40% ক্যালকুলেট করে এটা আসবে। দেখ একটু ক্যালকুলেট করে দেখে নে নিজেরা হাতে, তাহলে তোদের সুবিধা হবে। 1,00,400 इंटू सर 40%, सर सही है ना? 40,160 हो गया। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब 5 से 6 को माइनस करना है। 5 मतलब ये जो ऊपर का है 5 और ये है 6, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60,240। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो 5 है, ये 5 है 1,00,400, और 6 है ये 40,160। तो 5 से 6 को माइनस करेंगे हम, हमको मिलेगा क्या, 60,240। ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इधर खत्म हो गया। और इसके बाद आपको बनाना है इसका बैलेंस शीट, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो, प्रॉब्लम अभी है तो वो भी आप बता सकते हो। আচ্ছা, স্ক্রিনটা কি স্টপ করে দেবো, স্টপ শেয়ারিং করব? यस सर। कंप्लीट हो गया ना? হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, কারোর যদি ওটা দেখতে অসুবিধা হয়ও, আমি দেখছি এখান থেকে আহ, তোদেরকে একটু পাঠানো যাচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি জাস্ট হোল্ড। देखो इसका पिक्चर हमने सेंड कर दिया, व्हाट्सएप में हमने दे दिया आपको। ओके, ना हम स्टॉप शेयरिंग। দেখে নে, আমি তাহলে শেয়ারিংটাকে স্টপ করে দিচ্ছি এখান থেকে। হ্যাঁ, ওকে বসতে বলেন, আমার হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, তোদের যা যা ইয়ে আছে কমেন্ট বক্সে দিতে থাক, আমি একটু ম্যানুয়াল, আমি তোদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, আমি তাহলে ম্যানুয়াল অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিলে আমার হয়ে যাবে। ওকে, এটা কি লিখছিস? রোল নাম্বার লিখতে হবে না, শুধু নিজের নিজের যেটা ভালো হয়েছে নাকি, ভালো বুঝতে পেরেছিস নাকি সেটা কমেন্টে লিখলেই হবে। রোল রোল নাম্বার তো আমাদের কাছে আছেই, রোল নাম্বার তোদের দিতে হবে না। Now I can stop recording of this session.